Hello everyone, welcome to the chemistry lecture. In continuation with aldehydes and ketones, my today's lecture will cover oxidation, reduction, reactions of aldehydes and ketones as well as electrophilic aromatic substitution. So in previous lecture what we had seen in detail: aldol condensation, cross aldol condensation, then Cannizzaro reaction and cross Cannizzaro reaction. After that we will take into consideration oxidation reactions of aldehyde and ketones. So oxidation reaction, so aldehyde can easily undergo oxidation by using acidified potassium dichromate H2SO4 K2Cr2O7. थोड़ा बड़ा लिखें आप लोगों को लिए थोड़ा क्लमजी हो रहा है. So we get aldehyde in presence of acidified KMnO4 or K2Cr2O7. It will undergo oxidation and will provide carboxylic acids. So this is what very simple kind of reaction: aldehyde RCHO in presence of acidified K2Cr2O7, mild oxidizing agent, will give carboxylic acid RCOOH. So aldehyde undergoes oxidation quite easily. Now we'll take ketones into consideration. Ketones are difficult to oxidize. Because it is having this COC linkage is very strong. And moreover it is not having any free hydrogen atom. So ketones are difficult to oxidize because of presence of this COC linkage, which is very strong. It undergoes oxidation by using strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent such as chromic acid or chromium oxide, concentrated HNO3 or alkaline KMnO4. These are the strong oxidizing agent which oxidizes ketone into carboxylic acid. So here we take ketone RCOR-, which on oxidation by using chromium oxide will give carboxylic acid RCOOH plus R-COOH. So we get carboxylic acid. If we take simple ketone CH3COCH3 under similar condition will give acetic acid, 2 moles of acetic acid. If we take different, that means if we take unsymmetrical ketone on oxidation, will give CH3COOH and C2H5COOH. So in ketones gives carboxylic acid, but by using strong oxidizing agent like chromium oxide, concentrated nitric acid and alkaline KMnO4. Now
important reaction we will consider is reduction. Let us consider reduction. First we will take Clemenson's reduction. Clemenson's reduction. Now what happens in Clemenson's reduction, that aldehydes and ketones on reaction with zinc amalgam and concentrated HCl, and concentrated HCl gives alkanes or saturated hydrocarbons. तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होगा, काय में होगा, अल्केन्स, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, तो इसमें देखते हैं रिएक्शन. अभी कि एल्डिहाइड लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस 4 nascent hydrogen provided by reducing agent. What is that reducing agent? Zinc amalgam and concentrated HCl. हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्केन. अब कितने कार्बन है? 2 कार्बन. तो 2 कार्बन वाला अल्केन क्या हो जाएगा? CH3 CH3 plus H2O. So we get this compound ethane, an alkane. Acetaldehyde get converted to alkane. ये हो गया पहला रिएक्शन. अब दूसरा रिएक्शन कीटोन के साथ देखते हैं. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन प्रोपेनोन, है ना? This is propanone. How many carbon do we see? 3 carbon. So on reduction by using zinc amalgam and concentrated HCl, दिख रहा है सभी को concentrated HCl, करेक्ट. नाउ प्रोडक्ट दिख रहा होगा. चलो जल्दी से बोल दो तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH3, करेक्ट, एंड साइड प्रोडक्ट इज H2O. तो यहां मिल गया आपको ये प्रोपेन. तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज क्या करना है उसे याद रखेंगे. जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, and they get converted to corresponding alkanes. ओके, दूसरा एक रिडक्शन है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन. वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन. अब ये रिडक्शन रिएक्शन में क्या रहेगा ये देखते हैं हम लोग. वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिडक्शन रिएक्शन. इसमें क्या होता है पहले कि एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड को, जैसे हम कंसीडर करें अल्डिहाइड को पहले रिएक्ट करेंगे हाइड्राजीन से. NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्राजीन. वी टेक हाइड्राजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपको मिलेगा इमीन. इमीन यानी C डबल बॉन्ड N. और इसे जब आप ट्रीट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फिर से रहेगा अल्केन और साइड प्रोडक्ट बनने वाला है नाइट्रोजन गैस. तो फिर नेक्स्ट बी टाइप जो रहेगा रिडक्शन में उसका नाम क्या है? वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन. तो बी टाइप रिएक्शन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन. अब डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूं, समझा दिया मैंने आपको. तो क्या करें अभी हम? सबसे पहले अल्डिहाइड लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O. एल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्राजीन. हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या है? NH2
सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्राजीन। इसको लिखते हैं थोड़ा उल्टा लिखते हैं H2N NH2। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। उसमें रिएक्शन देखे थे हमने, है ना, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया रिएक्टिंग विथ एल्डिहाइड। हाइड्राजीन का क्या बनेगा, हाइड्राजोन। और यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया हमने। आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल वी हैव हियर CH3CH double bond NH2. In general we call it as imine, and this is a hydrazone. And this hydrazone is then reacted with KOH, heat करना है, in presence of ethylene glycol. इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है CH2OH CH2OH। देखिए तो फॉर्मूला बना क्या, HOCH2CH2OH। इट इज अ सॉल्वेंट एंड अ कैटलिस्ट, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, यहां लिया था आपने एल्डिहाइड, हाइड्राजीन से उसे रिएक्ट किया, हाइड्राजोन यानी इमीन मिल गया आपको। इमीन को हीट करेंगे एल्कली से इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। आपको यहां से ये देखिए तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये नाइट्रोजन यहां एलिमिनेट कर दिया आपने, नाइट्रोजन एलिमिनेट कर दिया, तो नाइट्रोजन गैस अगर लिबरेट हो गई तो क्या बच गया अब, CH3 CH और ये H2 यानी CH3 इथेन मिल गया, अल्केन आ गया फिर से। तो हमने ऐसे ही समझाया था आपको, अल्डिहाइड को हाइड्राजीन से रिएक्ट करेंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इमाइन मिलेगा। इमाइन को आप KOH से और इथाइलिन ग्लाइकॉल से हीट करेंगे तो अल्केन मिला। 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज इथेन बिकॉज अल्डिहाइड इज हैविंग 2 कार्बन प्लस नाइट्रोजन गैस gets eliminated. So this is Wolff-Kishner reduction reaction. एक एरोमेटिक का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एरोमेटिक अल्डिहाइड लेते हैं, CH डबल बॉन्ड O। अब इसे ट्रीट का, ये क्या हो गया, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड है ना। दिस इज रिएक्टेड विथ H2N NH2 हाइड्राजीन। क्या रिमूव होने वाला है, H2O। तो H2O ये यहां से अगर आपने रिमूव किया तो आपको मिलेगा हाइड्राजोन। हाइड्राजोन के लिए फॉर्मूला अब याद बहुत ज्यादा रखना नहीं है अपने को, बिकॉज फंडा क्लियर है। व्हाट वी गेट, CH डबल बॉन्ड NH2। सो दिस इज hydrazone and commonly known as imine. इमीन आ गया। अब इसे काय के साथ ट्रीट करना है, दिस इज ट्रीटेड विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। हीट करना है इसे, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। अब देखिए आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। फिर से क्या करें आप, याद रखने के लिए N2 गैस रिमूव कर दो। तो ये N2 गैस इफ लिबरेटेड फ्रॉम इमीन प्रोडक्ट, what we have remaining here is CH and CH2, CH2। तो ये क्या मिला आपको, टॉलिन मिल गया ना, CH3 with benzene ring, methyl benzene, commonly called as toluene. So this is what the other reduction reaction we call it as Wolff-Kishner reduction reaction. तो दो रिडक्शन है, Clemenson's reduction using zinc amalgam concentrated HCl giving alkanes, Wolff-Kishner reduction reaction। दो नाम है, दो स्टेप रिएक्शन रिडक्शन में। एक है हाइड्राजीन से रिएक्ट करो तो हाइड्राजोन बनेगा,
हाइड्रोजन को अल्कली के साथ हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो आपको यहाँ भी अल्केन ही प्रोडक्ट मिलने वाला है. Okay, so this is about reduction reaction. Now we will move to the next reaction, that is aromatic electrophilic substitution reaction. Now we will consider aromatic aldehydes and ketones. Aromatic aldehydes and ketones. So we take here aromatic electrophilic substitution reaction. So aromatic aldehyde, benzaldehyde, aromatic ketone is what we have here. Aromatic ketone as acetophenol, methylphenyl ketone. Now in this reaction, what is the nature of a carbonyl group? We know carbonyl group C double bond O with 2 valencies free, है ना. इसमें अगर अल्डिहाइड होगा तो एक वैलेंसी अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ये बना अल्डिहाइड. और अगर कीटोन होगा तो ये दोनों भी यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, तो ये होगा कीटोन. अब R के जगह हम क्या यूज करने वाले हैं? AR, क्योंकि ये एरोमेटिक है. तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन मिल गया आपको. नाउ कॉमन क्या है दोनों के बीच में? कार्बोनिल ग्रुप. सो कार्बोनिल ग्रुप का नेचर क्या है इसको समझेंगे. कार्बोनिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. Electron withdrawing group. It is a electron withdrawing group. Electron withdrawing group means it withdraws electron from the benzene ring, making aromatic ring less reactive at ortho and para position. Ortho and para positions. And what are the feature? ये ऐसा क्यों कर पाते हैं कार्बोनिल ग्रुप? Because carbonyl group shows minus I effect, inductive effect, minus I effect, inductive effect, as well as it shows, the first point, it shows minus I effect, and second is resonance hybrid. Because of these two reasons, carbonyl group attached to aromatic ring shows electron withdrawing effect on the aromatic ring, making ortho and para position less reactive ortho para position, and thus meta position becomes more reactive, becomes comparatively more reactive. So क्या होगा? एज ए रिजल्ट जो भी इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप रहेगा वो कहाँ आके अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम कम हो गई. और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन. तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कौन सी मिलेगी फिर? मेटा पोजीशन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वन हैज टू रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट aromatic electrophilic substitution on aldehyde and ketones. So carbonyl group has deactivating effect on benzene ring or aromatic ring,
and makes ortho and para position less reactive. As a result, meta position becomes comparatively more reactive. और उसके रीजन दो है हमारे पास में, because of minus I effect of carbonyl group, that is inductive effect, and resonance hybrid effect. तो रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्बोनिल ग्रुप मेटा को ज्यादा इफेक्टिव बना देता है. एंड एज ए रिजल्ट जो भी इनकमिंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक जो भी इनकमिंग ग्रुप रहेगा, वो कहाँ जाने वाला है, फिर से एक बार कहाँ जाएगा, वो मेटा पोजीशन पे. तो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन. सो इट अंडरगोज नाइट्रेशन, sulfonation, halogenation. All these reactions are possible at meta position. So we'll take into consideration nitration of aromatic aldehyde. So let us take aromatic aldehyde. Here we take बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड को नाइट्रेशन करना है यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड को कैसा लिखते हैं, HONO2, दैट इज HNO3. तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन की कंडीशन तो सभी को याद हो गई होगी, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. Without sulfuric acid concentrated, nitration is not possible. Okay, तो यहाँ लिया बेंजाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड concentrated, and what we get here is nitrobenzaldehyde. We get nitrobenzaldehyde. कौन सी पोजीशन पे जाना चाहिए नाइट्रो ग्रुप ने, मेटा पोजीशन पे. तो मेटा नाइट्रोबेंजीन, M नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, M nitrobenzaldehyde is the product. So this is what the aromatic electrophilic substitution at meta position. So aldehyde, aromatic aldehyde and ketone shows they form meta derivatives when subjected to electrophilic substitution reaction. So this is about the reactions of aldehydes and ketones. Now we will see uses of aldehydes and ketones. तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है. aldehyde and ketones के uses तो आप तो देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर aldehyde ketone की uses या applications की बात करें, uses of aldehydes and ketones. तो सबसे पहला तो formaldehyde. Formaldehyde, it is used as disinfectant. आजकल तो डिसइंफेक्टेंट की बहुत ज्यादा बात शुरू है ना, तो used as a disinfectant and preservative. आपको इसके पहले पढ़ाया था हमने, एज ए प्रिजर्वेटिव. कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन क्या होता है, 40% एक्वस फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्मेलिन. तो इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्पेसिमेन. बायोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस. ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया. सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्मल्डिहाइड. फिनॉल जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ये एप्लीकेशन देखा था, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन यानी पॉलीमर इन द फॉर्म ऑफ बेकेलाइट. सो फॉर्मल्डिहाइड along with phenol provides a resin known as bakelite, a very tough plastic, है ना, bakelite, very tough plastic. It is used for this purpose. It is also used as a binder in plywoods.
सो प्लाईवुड्स में एज ए बाइंडर का यूज होगा फॉर्मल्डिहाइड का. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज व्हाट? सिल्वरिंग ऑफ मिरर. सिल्वरिंग ऑफ मिरर. तो सिल्वरिंग ऑफ मिरर is also possible by using formaldehyde. Next we take uses of acetaldehyde. Acetaldehyde, a very important chemical used for the preparation, used for the manufacturing in a large scale में, used for the manufacturing of acetic acid, what is this? Acetic acid. Then we have chloroform. Chloroform can be prepared by using acetic acid. Chloroform, iodoform, and many chemicals and many other chemical substances. So this is what we say the application of acetaldehyde. Next is acetone. It's a very important commercial solvent, है ना? Acetone is a very important commercial solvent. It is used in the manufacturing of paint remover and a nail paint remover भी आ गया उसमें, है ना? पेंट रिमूवर, लेकरिंग, लेकर्स बनाने के काम आता है. शाइनी कोटिंग आती है, लेकर्स बनाने के काम आता है. और एज अ disinfectant also used in explosives and in adhesives. Adhesives have this solvent acetone, है ना? Adhesives सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा adhesives याद आ जाता है अपने को, है ना? फेविकॉल का जोड़. तो फेविकॉल का जोड़ मजबूत बनाए using acetone as a solvent in it. तो adhesive, explosive, disinfectant, lacquers and paint remover मैन्युफैक्चरिंग में एसीटोन का यूज होता है. एंड बेंजर एंड इन परफ्यूम्स ऑल्सो, यस, इन परफ्यूम्स ऑल्सो हैव द एप्लीकेशन. तो एसीटोन यूज इन परफ्यूम्स ऑल्सो. एंड नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड. इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड एज ए डाई स्टफ. डाई कलरिंग के लिए काम आता है, डाई स्टफ. And in perfumery, तो perfume industries में this is used in perfumeries. So these are the applications of aldehydes and ketones. तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखो, एक ही बार में ये सब याद होना चाहिए. So dear students, प्यारे बच्चों, अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया? aldehyde and ketones. This is over. Now we will move to the next part of the same chapter, that is carboxylic acid, है ना? तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हमारे काफी लेक्चर हो गए. L11 L12 आज हो जाएगा. L12 के बाद में अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे मूव करते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन कंटिन्यूएशन विद, है ना, अल्डिहाइड कीटोन्स के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या देखते हैं अब आप? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश COOH ग्रुप. इट हैज कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. यानी ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी भी शो करेगा
और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी प्रॉपर्टी शो करेगा और अपने आप की भी प्रॉपर्टी, दोनों को मिला के। तो काफी सारी रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन रिलेटेड विथ कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन रिलेटेड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन related with COOH group. So carboxylic acids have carbonyl and hydroxyl group in its molecule, and general formula RCOOH or ARCOOH. That means classification of carboxylic acid. Classification of carboxylic acid into two type. यहाँ लिख दिया हमने, एक क्या होगा एलिफेटिक और दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं ये देख लेते हैं अब हम लोग। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म यानी CA करके लिखेंगे। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, the COOH group is directly bonded to an alkyl group. We call it as aliphatic carboxylic acid. So COOH group directly bonded to alkyl group. So R is an alkyl group. इससे जब COH ग्रुप रहेगा बॉन्डेड, वी कॉल इट एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जाम्पल CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH। अब इसमें एक्सेप्शन क्या बन जाएगा अपने पास में, एक्सेप्शन रहेगा HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड क्या है, एक्सेप्शन है। बाकी R क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप। तो देखो ये CH3, ये देखो C2H5, ये देखो C3H7। तो दिस इज व्हाट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इससे तो आप बना सकते ना एक सिंपल सा, R क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, CnH2n+1 COOH बन गया जनरल फॉर्मूला। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक जनरल फॉर्मूला है, वो क्या है, CnH2nO2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड as well as for aliphatic, yes, what is that, aliphatic esters. Aliphatic esters and aliphatic carboxylic acid are the functional isomers. They are functional isomers because they share the common general formula. तो इसमें आप एस्टर भी बना सकते हैं और इसी से आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कशन चल रहा है, तो देखो यहाँ अप्लाई करके देखो, N = 2, तो यहाँ पर C2H4O2, C2H4O2 है एसिटिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, N की वैल्यू 3, 2 + 1 3 हो गया। C3H6 देखो दिख रहा है, C3H6O2, तो ये हो गया आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड also classified into some types. What is that? On the basis of number of COOH group present. If only one carboxyl group, we call it as monocarboxylic acid, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ना। ये फॉर्मूला काय का बन रहा है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, RCOOH, monocarboxylic acid, correct? And this monocarboxylic acid is having general formula RCOOH, जो हमने यहाँ पर देखा, CnH2n+1। दूसरा है
डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आ गए तो डाइकार्बोक्सिलिक, 3 आ गए तो ट्राइकार्बोक्सिलिक, है ना। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे आप, तो उसमें क्या होगा, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, तो उसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप आ गए। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इज हैविंग 3 कार्बोक्सिल ग्रुप, तो CH2COOH, COOH and again CH2COOH, and it is named as tartaric acid. It is named as it is named as citric acid. It is named as citric acid. It is named as citric acid. फॉर्मूला देखेंगे आप, citric acid named as citric acid। तो ये ट्राइकार्बोक्सिलिक हो गया, ये डाइकार्बोक्सिलिक हो गया। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के तो ये सब एग्जाम्पल अपने पास में है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH group classified into 2 types, aliphatic and aromatic. Aliphatic COOH group is directly bonded to alkyl group, which is further classified on the basis of number of hydroxyl group, number of carboxyl group present. If 1 carboxyl, we call it as monocarboxylic acid. If 2 carboxylic acid, we call as dicarboxylic acid. If 3, then tricarboxylic acid. एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की लिस्ट आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है या आपको पता होना चाहिए। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की लिस्ट देखते हैं, कुछ 4-5 कार्बोक्सिलिक एसिड हम याद रखते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है, ओम्स गैप। ओ से ऑक्सैलिक एसिड, एम से मेलोनिक एसिड, एस से सक्सिनिक एसिड, जी से ग्लूटारिक एसिड, एल से ए से एडिपिक एसिड, एंड पी से पाइमेलिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड एंड पाइमेलिक एसिड। कैसे याद रखा इसको, ओम्स गैप्स, है ना। ओम्स गैप्स देखिए, ओम्स गैप, ओम्स गैप। अब इनके IUPAC नेम भी बहुत इजी है। ऑक्सैलिक एसिड यहां दिख रहा है आपको, डाई इथेनोइक एसिड, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, डाई इथेनोइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, है ना। इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। मेलोनिक क्या होगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट वाला क्या होगा, सक्सिनिक एसिड, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन डाइओइक एसिड, बहुत इजी है। ग्लूटेरिक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन एडिपिक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड, और लास्ट वाला पाइमेलिक एसिड इज हेप्टेन डाइओइक एसिड। So this is what the list of dicarboxylic acid. So we had seen aliphatic carboxylic acid. Now we'll take aromatic carboxylic acid. Aromatic carboxylic acid बहुत इजी हो गया, ये तो सभी को पता होना चाहिए।
What do you mean by aromatic carboxylic acid? When COOH group is directly bonded to aromatic ring, that is benzene ring. COOH group directly bonded to, क्या directly bonded to aromatic ring, that is benzene ring. करेक्ट है? हमारे लिए तो एक ही स्टैंडर्ड रिंग लेना है हमारे सिलेबस के हिसाब से. दैट एरोमेटिक रिंग इज बेंजीन रिंग. तो COOH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग, वी कॉल इट एज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बना दिया, COOH लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड. Now this is the name even accepted by IUPAC system. So this is a common name as well as IUPAC name, and most of the compound, they are the derivatives of benzoic acid. Okay. So जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव बनाना है, ये डेरिवेटिव बन जाएगा बेंजोइक एसिड का. देखो तो अभी आप ये लगा दिया और यहाँ पर ये OH ग्रुप आ गया. तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड, या आप लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड. द नेम इज 2 हाइड्रोक्सिल benzoic acid. 2-hydroxyl benzoic acid. So these are the various aromatic carboxylic acid. एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी देख लेते हैं, इसमें काम आने वाला है आगे. COOH. So dicarboxylic acid. These are the monocarboxylic acid. Monocarboxylic कौन से? एरोमेटिक. अब ये एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज नेम्ड एज थैलिक एसिड, है ना. प्रोनाउंसिएशन क्या करना है? थैलिक. PH उसका साइलेंट है, तो पिथैलिक नहीं, इट इज थैलिक एसिड. तो ये हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी इंट्रोडक्शन ले लिया. अब इसके बाद इसकी बाकी प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज, देन प्रिपरेशन, यूजेस and various reactions. So enough for this today's lecture. See you in the next class. Thank you very much.